حیوان غالباً موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو تلاش کر رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لوگوں کو نشان زد کرنے کے لیے۔ لیکن ایک ایسا ہے جو اس پوری مدت کے دوران اپنے ماتھے پر درندے کا نشان لیے رہا، وہ دجال جو مستقبل سے آئے گا۔ سونامی پہاڑوں کا حجم۔ اب ہم نہیں جانتے کہ مشرق کے خاتمے سے کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دجال اور درندے کو ان کے کھوئے ہوئے جذبے میں اجازت دیں کہ ہم 10 بڑی نشانیوں کی اصل فہرست کو ترتیب سے ظاہر کریں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی نے 1400 سال پہلے درج کیا تھا۔ یہ صرف کوئی فہرست نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار لاٹری ٹیم پیش کرتی ہے واقعات کی ترتیب میں 10 اہم نشانیاں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دھواں، دجال، جانور، مغرب میں سورج نکلنا، مسیح کی واپسی کے بارے میں۔ آجوج ماجوج مشرق کی جانب سے ٹوٹ پڑے، مغرب کی جانب گرنا، عرب میں ٹوٹنا۔ آگ، آجوج ماجوج کے بارے میں ہماری پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کرہ ارض پر صرف 4 آتش فشاں آباد ہے۔ ہم غلط تھے۔ ایک اور ہے، صرف ایک دوسرا، جو ایک راز کی طرح صاف نظروں میں چھپا ہوا ہے، اور یہ یمن میں ہے۔ عدن شہر میں ایک آباد گڑھا ہے جس میں 10 لاکھ سے زیادہ رہائشی ہیں۔ عدن ایک مدوم آتش فشاں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سپر آتش فشاں ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ کرہ ارض کا سب سے بڑا آتش فشاں ہے جو براہ راست زمین کے کور سے جڑا ہوا ہے۔ یہ دعوے ابھی تک ثابت نہیں ہو سکے، لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ ناسا کے پاس اس کی تصاویر موجود ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں واقعی اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں یا یہاں تک کہ ناسا کیا کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بڑی نشانی کے بارے میں کیا کہا۔ آخری نشانی عدن کے نچلے حصے سے یمن سے آگ کا نکلنا ہوگا۔ یہ ہے نا، یہ زمین کی تباہی کا مقام ہے۔ دوسری بڑی نشانیاں سوئے ہوئے ڈریگن کو جگا دیں گی۔ عدن کے نچلے حصے سے ایک زبردست اس کے چاروں طرف آتش فشاں لکھا ہوا ہے۔ یہ آگ پھیل جائے گی اور باقی لوگوں اور تمام جانوروں، شکاری اور شکار کو قیامت کے مقام پر جمع کر دے گی۔ عظیم آگ اس آخری واقعے کا پیش خیمہ ہوگی جو ہماری نسلوں کے معدوم ہونے کا سبب بنے گی۔ یہ بنی نوع انسان کا آخری مرحلہ ہوگا۔ آگ انہیں اکٹھا کرے گی، لیکن کچھ اور ہی انہیں ختم کر دے گا۔ ملٹی ورس کی مکمل تباہی زمین کے ساتھ ساتھ پیروی کرنا ہے۔ اسرافیل سور پھونکنے سے سیکنڈ دور ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہر کوئی اور جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ اس وقت تک خاک میں مل جائے گا جب تک کہ فرشتوں کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ پھر فرشتوں کی روحیں قبض کی جائیں گی۔ موت کا فرشتہ مرنے والی آخری مخلوق ہوگی۔ وہ اپنی جان لے گا، اور اس طرح وہ واحد وجود جو باقی رہے گا، ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ ہوگا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسرافیل کو پہلے زندہ کیا جائے گا۔ فرشتے کو دوسری بار سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، اور جیسے ہی سور دوبارہ پھونکا جاتا ہے، ہر چیز کو دوبارہ بنایا جاتا ہے، بشمول بنی نوع انسان۔ ہمارے نبی سب سے پہلے زندہ کیے جانے والے ہیں۔
सूर के 2 फूंकने के दरमियान 40 का वक्फा होगा। हम 40 नहीं जानते क्या, लेकिन हम क्या जानते हैं कि इसका मतलब यह है कि वक्त का हिसाब अभी बाकी है। इसी तरह दुनिया के खत्म होने के बाद सूर की पहली फूंक से फरिश्ते फना हो जाते हैं, सिर्फ अल्लाह ही रह जाता है। ठीक है, लेकिन अल्लाह वक्त का पाबंद नहीं है, तो क्या 40-40 का हिसाब कैसे लगाया जा सकता है? वक्त की पाबंद चीज के बगैर यह मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, क्या यह जाहिर नहीं है? यह तख्त है। 40 का हिसाब लगाने के लिए वक्त की पाबंद चीज को बाकी रहना पड़ता है। 40 सेकंड, मिनट, घंटे, आ दिन, हफ्ते, महीने, आ 40 तख्त साल। कायनाती टाइमलाइन को सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह महफूज खत्म हो चुका है, लेकिन वक्त का हवाला खुद अल्लाह का अर्श बाकी है। ट्रम्पेट न सिर्फ मल्टीवर्स को खत्म करता है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये अगली मल्टीवर्स शुरू करता है। ये बहुत दिलचस्प है। ये एक हैरत अंगेज है। अगर ये पहली बार नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा अगर ये बिग बैंग शुरू करने वाला बगल था? हम उसे बिग बैंग कहते हैं। ये आवाज है, ठीक है। एक धमाके और एक सूर दोबारा आवाज पैदा करता है, ठीक है, लेकिन बड़े धमाके की आवाज बिल्कुल नहीं थी। यह हकीकत में खामोश था, क्योंकि आवाज खला में सफर नहीं कर सकती, क्योंकि खला तकरीबन एक कामिल खला है और खला हुआ से खाली है, और हुआ वो जरिया है जो आवाज की लहरों को ले जाता है। आवाज सुनने के लिए, आवाज को सुनने और हिदायत करने के लिए मादे को उछालने की जरूरत है। तो बिग बैंग जोर से नहीं हो सकता था। यह ज्यादा आवाज की कंपन की तरह था। लेकिन अब देखते हैं, एक और नजरिया है। कायनात के इब्तिदाई मराहिल में मादे की कसाफत की वजह से, जैसा कि कायनात के मामले में वाकई एक दूसरे के करीब थे, शायद बिग बैंग की आवाज बुलंद थी। शायद आवाज इस पार सफर कर सकती थी। और जैसे जैसे कायनात का मामला फैलता गया, जैसे ही खला खुद फैलता गया, यह खामोश हो गया, क्योंकि खला एक खला है। ठीक है, तो अगर बिग बैंग सूर से था तो किसने फूंका? इसराफील तो यकीनन फरिश्तों को जमीन व आसमान से पहले पैदा किया गया था। अक्सर उलमा मुत्तफिक है। उलमा कहते हैं कि आसमान और जमीन 6 दिनों में बनाए गए, और यह सिर्फ कुन फयाकौन नहीं था। और यह इसलिए है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को तख्लीक के मराहिल दिखाना चाहता था। यह समझ में आता है क्योंकि मल्टीवर्स की तबाही के बाद भी फरिश्ते बाकी रहेंगे। वो गालिबन मल्टीवर्स की तख्लीक से पहले वहां मौजूद थे। लिहाजा शायद फैसला शुरू होने से पहले, सूर फूंकने से खला, आसमानी अशिया और खुद जिंदगी के ताने बाने की तख्लीक के लिए एक और बड़ा धमाका होगा। एक बार फिर अल्लाह की कुदरत से, यकीनन, जैसा कि वो ये वाज़े करता है कि अल्लाह ही वो है जिसने आसमानों और जमीन को आपस में मिलाने के बाद फाड़ डाला, एक जगह से बिग बैंग किया। ये इनफरादियत ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आवाज एक ऐसा उनसर था जो मल्टीवर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। घने मवाद ने आवाज को अवाइल कायनात में खला में सफर करने की इजाजत दी, और आवाज एक बार फिर मल्टीवर्स को खत्म कर देगी। अब देखते हैं, अगर कोई आवाज काफी बुलंद है तो ये चीजों को चीर कर टुकड़े टुकड़े कर सकती है। और सूर किस कदर बुलंद है, हम इसके बड़े पैमाने पर फर्ज कर सकते हैं, क्योंकि यह तख्लीक को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला है, और उसको पकड़ने वाला फरिश्ता इतना बड़ा है कि उसके पांव सबसे नीचे जमीन में है और उसका सर कायनात की बुलंद तरीन सतह पर है। आवाज को एक खतरनाक तबाहकुन आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सूर सुनने वाला पहला शख्स फौरन बेहोश हो जाएगा। दर हकीकत तमाम मखलूकात बेहोश हो जाएंगी। आवाज ये कर सकती है। इंसानों की तरह आवाजें हैं, हम सुन नहीं सकते। और एक खतरे का मकाम है कि अगर आवाज बहुत तेज है, ठीक है, यह हमें मार डालेगी। काफी ऊंची आवाज पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। काफी तेज आवाज ब्लैक होल भी बना सकती है। लेकिन हमें इस जैसी फलकियाती आवाज बनाने के लिए पूरी कायनात की तवानाई की जरूरत होगी। हिमम, ये दिलचस्प है। क्या आपने कभी सोचा कि बड़ा बहरान कैसे होगा?
हमारे पास एक सूर है जो जाहिर है कि आवाज है। हमारे पास न सिर्फ एक सूर है, हमारे पास एक सुपरमैसिव ट्रम्पेट है जो इंतहाई बड़े पैमाने पर आवाज की लहरों का सबब बनेगा, जिसकी वजह से एक सुपरमासिव ब्लैक होल हो सकता है जो पूरी तरह से चूस सकता है। मल्टीवर्स बड़े बहरान की तरह लगता है ना? अल्लाह आसमानों को इस तरह लपेट देगा जैसे कोई तूमार किताबों को लपेट देता है। उसका सूर है, वो फलकियाती आवाज है। ये सब ऐसा लगता है जैसे ये पहेली में फुट बैठता है ना? लेकिन इंतजार करो, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि इस सब के इस्तिदलाल में एक बुनियादी खामी है। मुमकिन है कि कायनात के इब्तिदाई मराहिल में घने माद्दे की वजह से आवाज आई हो। जी हां, तो माद्दे के दरमियान काफी जगह नहीं थी, इसलिए सफर करने के लिए हुआ मौजूद थी। सौती लहरों का एक मीडियम था और आवाज की लहरों को मीडियम की जरूरत होती है। कायनात बिग बैंग के बाद से फैल रही है। उस वक्त कायनात के अंदर आसमानी अशिया के दरमियान काफी जगह है। आवाज खला के अंदर सफर नहीं कर सकती, ये मुमकिन नहीं। सूर फूंकने की आवाज नहीं सुनी जा सकती। इसे कशिश शक्ल की लहरों के जरिए महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसे सुना नहीं जा सकता। आवाज के सफर के लिए इसे एक मीडियम की जरूरत है। इसे हुआ की जरूरत है। हुआ वो मीडियम है, लेकिन एक खला के अंदर कोई हुआ नहीं है। खला के अंदर हुआ नहीं है, इसलिए आवाज का सफर करने का कोई जरिया नहीं है। तो ये सब महज बकवास है। हालांकि क्या ये सब महज बकवास है? क्या ये सब सिर्फ हैरत अंगेज तौर पर कामिल है? सूर की आवाज सुनाई देगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इसे सुनकर गर्दने आवाज की तरफ फेर लेंगे। और कुरान में जब भी अल्लाह ने सूर का जिक्र किया है, अल्लाह कहता है फौंका हुआ है। ये इसका तर्जमा बजाया गया है, फौंका आ बजाया। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शोर मचाता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहले से तयशुदा तौर पर सूर है। हमें फर्ज करना चाहिए कि ये शोर करता है और इसका सामना करने दें। अगर नबी ने कहा कि ये आवाज देता है तो ये सच है, लेकिन अब देखते हैं कि हम पूरी तरह से इस नुक्ते को खो रहे हैं। ये इशारा हमारे चेहरों के सामने है और ये हमेशा साथ ही रहा है। अल्लाह ताला कसीर अल जिहाद को खत्म करने के लिए जो आला इस्तेमाल करता है वो एक सूर है। तरही अब तक बनाए गए तमाम आलात में से एक आला है, पियानो, ड्रम, गिटार और उसी तरह ये तमाम दूसरे आलात जो आवाज पैदा करते हैं, इसे सिर्फ एक सूर कुआ का आला होना चाहिए। सूर फूंका जाएगा। उड़ा दिया। किसने उड़ा दिया? इसराफील। इसराफील अपनी सांस उड़ाने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? और इसराफील का दम क्या है? हुआ। सुभान अल्लाह। क्या अब जानते हैं कि हुआ आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज सफर कर सकती है? एक ही अचानक धमाके में यसराफील सूर फूंक देगा जो हुआ को खला के खला में दाखिल होने का मौका देगा ताकि वो रोशनी की रफ्तार से मल्टीवर्स की वसअतों में सफर कर सके। इसराफील की सरासर तवानाई और ताकत की वजह से हुआ गरज से पहले बिजली की तरह टकराएगी। वो गरज जो सूर की दुनिया को हिला देने वाली आवाज है, वो आवाज जो फरिश्ते की सांसों से अपना रास्ता बनाती है। वो एक मीडियम है